Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. I hope you are doing well. In today's video, we are going to discuss one of the most important learning objectives of CFRC ophthalmology, how to take a focused ophthalmic history in a structured and concise manner. First of all, the step one is introduction to the patient. Whenever you are asked to take a history in an OSPE or in a ward, never start asking questions directly. Always begin professionally. You can say, Assalamu alaikum, my name is Flafla and I am fourth year MBBS student. I would like to ask you a few questions about your eye problem. This will take around 5 to 10 minutes and will help us understand your condition better. Is that okay with you? After obtaining permission, confirm the patient's identity, ensure privacy, make the patient comfortable. अपने eye contact maintain करना है और and speak politely and clearly. Second step is patient profile or biodata of patient. These questions may seem simple, but they provide valuable diagnostic clues. Ask the patient about his or her name, age, gender, occupation, रेजिडेंस और ये पूछना है कि वो इमरजेंसी से प्रेजेंट कर रहा है या ओपीडी में आया था, ये चीज़ आपने कंफर्म कर लेनी है। अब ये चीज़ें देखने में तो बहुत सिंपल लग रही हैं, लेकिन इनकी डायग्नोस्टिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेशेंट से उसकी एज के बारे में पूछेंगे तो ये स्ट्रांगली एसोसिएट कर रही होती हैं बहुत ज़्यादा डिजीज़ एज के साथ। फॉर एग्जांपल इन चिल्ड्रन थिंक ऑफ कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट, कॉन्जेनिटल ग्लाकोमा और रेटिनोब्लास्टोमा। इन यंग adults optic neuritis, trauma, keratoconus are more common. In young adults, in older adults, cataract, glaucoma, diabetic retinopathy, and age-related macular degeneration become more likely. Um, मेरे कहने का मतलब है कि एज अलोन कैन सिग्निफिकेंटली नैरो योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। नेक्स्ट आस्क अबाउट जेंडर, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंस। अब बहुत सी डिजीज़ जो हैं वो ऑक्यूपेशन से भी रिलेट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल एल्डर प्रेजेंटिंग with severe eye pain after work may have photokeratitis. A farmer with sudden eye pain may have sustained corneal injury from any plant material. A carpenter or factory worker may have metallic foreign body in eye. A computer user with burning and watering may suffering from dry eye syndrome, etc. etc. Now ask the most important opening question. Ask the patient what brought you to the eye clinic today or what is your main eye problem, and then allow the patient to answer without interrupting. And most important thing, record the presenting complaint or chief complaint in patient's own words whenever possible. For example, he can say blurred vision in the right eye for 2 months, redness in both eyes for 3 days, or severe pain in left eye since yesterday. ऑलवेज इंक्लूड द ड्यूरेशन ऑफ कंप्लेन। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि हमने ड्यूरेशन उसकी पूछनी है। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती हैं उनमें है डिक्रीज विजन, आई पेन, रेड आई। ये आगे शायद मैंने डिस्कस भी किया हूँ डिटेल से। डिक्रीज विजन, आई पेन, रेड आई, वाटरिंग, डिस्चार्ज, इचिंग होती है, फोटोफोबिया, डिप्लोपिया, फ्लोटर्स, फ्लैशेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन या स्वेलिंग वगैरह। मोस्ट कॉमन यही चीफ कंप्लेंट्स होती हैं पेशेंट की। अब हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की हम बात करें जो कि है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। इसमें हमने ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आप मेमोराइज कर लें, यही इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं मोस्ट कॉमनली। आप इसके लिए हमने निमोनिक पहले यूज़ किया है, ओडिपारा या सॉक्रेट्स जो भी है आप याद कर लें। ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हमने पूछने होते हैं। किसी भी डिजीज़ का ऑनसेट क्या है, कैसे सडनली ऑनसेट है या ग्रेजुअल है, ड्यूरेशन क्या है, उसकी प्रोग्रेशन क्या है, एक्टिवेटिंग फैक्टर्स क्या है, रिलीविंग फैक्टर्स क्या है, एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है उससे, उसके पेन हो रही है, वाटरिंग या डिस्चार्ज है, रेडनेस, इचिंग वगैरह वगैरह। सिविरिटी पूछनी है, इसका करेक्टर पूछना है और पूछना है कि एक आंख में है या दोनों आंखों में है, लेफ़्ट में है, राइट में है, और इस डिज़ीज़ का कोई प्रीवियस एपिसोड था भी या नहीं। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को
नज़र में रख के अगर हम स्पेसिफिकली कुछ जो बहुत मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं उनकी बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डिक्रीज़ वीएन। डिक्रीज़ वीएन में हम सबसे पहले पेशेंट से पूछेंगे कि आपके पास डिज़ीज़ का ऑनसेट क्या था, कि व्हेन डिड यू फर्स्ट नोटिस द डिक्रीज़ इन वीएन, वाज इट सडन और ग्रेजुअल है। अगर पेशेंट बताएगा कि इसका ऑनसेट जो है हमारे पास, एक मिनट में आगे बताती हूँ। अब हमारे पास कोई पेशेंट आया है जिसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है कि डिक्रीज वीएन। हमने सबसे पहले पूछना है कि उसका ऑनसेट कैसा था, सडन था या ग्रेजुअल था। अगर वो कह रहा है कि जो है डिक्रीज वीएन वो सडन और पेनलेस है, तो वी कैन थिंक अबाउट रेटिनल डिटैचमेंट एंड विट्रस हेमरेज। अगर वो कह रहा है कि सडन पेनफुल है, तो ये एक्यूट एंगल ग्लोकोमा हो सकता है, या केराटाइटिस हो सकता है, कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है। अगर वो कह रहा है कि ग्रेजुअल पेनलेस है, तो ये कैटरैक्ट हो सकता है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। फिर हमने अब ऑनसेट्स का पूछ लिया उससे, उसके बाद हम उससे पूछेंगे इसकी ड्यूरेशन क्या है। हम पूछेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस प्रॉब्लम। तो अगर वो कुछ घंटों से उसकी डिक्रीज वीएन है, तो वो एक्यूट ग्लोकोमा भी हो सकता है। अगर डेज से है तो केराटाइटिस हो सकता है। अगर ईयर्स से है, काफ़ी सालों से वो कह रहा है या मंथ से कह रहा है, तो कोई रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है हमारे पास, मायोपिक हो सकता है, वो हाइपरमेट्रोपिक हो सकता है, या डायबिटिक रेटिनोपैथी वगैरह हो सकती है। उसके बाद हम पेशेंट से इस डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन के बारे में पूछेंगे कि हैज़ इट स्टेट द सेम और बिकम वर्स। अगर वो प्रोग्रेस कर रही है, तो उससे रिलेटेड हमारे पास जो डिजीज़ होंगे हम वो सोच सकते हैं कि कैटरैक्ट जो है वो प्रोग्रेस कर रहा होता है, मुसलसल वीएन डिक्रीज़ हो रही होती है, ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी वगैरह। अगर वो कह रहा है कि स्टेबल ही है, तो कोई ओल्ड रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है, एम्ब्लोपिया वगैरह हो सकता है। अब हम उससे पूछेंगे कि इसकी लेटरलिटी क्या है, एक आंख में है, दोनों में है। यूनिलेटरल हो गया तो रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, और अगर बाईलेटरल है तो फिर कोई रिफ्रैक्टिव एरर वगैरह हो सकता है। और फिर हम उससे उसकी सिविरिटी के बारे में पूछेंगे कि अम, अब हम उससे इसकी सिविरिटी कैसे पूछ सकते हैं कि कैन यू स्टिल रीड, रिकॉग्नाइज फेसेस और वॉक। अगर वो कह रहा है कि सीवियर लॉस है, तो हम ग्लोकोमा के बारे में सोच सकते हैं, मेच्योर कैटरैक्ट हो सकता है, रेटिनल डिजीज़ हो सकती हैं, कोई ऑप्टिक नर्व डिजीज़ हो सकती है। उसके बाद हम उससे इसका करेक्टर पूछेंगे कि कोई ब्लरी विजन तो नहीं है आपकी, क्लाउडी तो नहीं है, ब्लैक या कोई कर्टन वगैरह तो नहीं है, ये नियर की है, डिस्टेंट आपकी नियर विजन अफेक्ट हो रही है या डिस्टेंस विजन अफेक्ट हो रही है इससे। अगर वो कह रहा है कि डिस्टेंस ब्लर है, तो मायोपिया हो सकता है। नियर की कह रहा है तो हाइपर मेट्रोपिया हो सकता है। अगर उसकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा है, तो हम प्रेसबायोपिया के बारे में भी सोच सकते हैं। और कैटारैक्ट के स्पेसिफिक फीचर होता है कि उसमें कर्टेन ओवर विजन होता है। रेटिनल डिटैचमेंट में हमारे पास रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकता है, डॉटेड लाइंस हैं, तो कोई मैक्यूलर डिजीज़ भी हो सकती है। अगर वो कह रहा है कि टनल विजन है, तो ग्लोकोमा के बारे में हम सोच सकते हैं। तो इस तरह हम ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेंगे और हम अपने डायग्नोसिस के मज़ीद करीब जाते जाएंगे। उसके बाद हम एसोसिएटेड सिम्टम्स उससे पूछेंगे, कोई पेन, रेडनेस, फ्लोटर्स, फ्लैशेस, हेडेक, नोज़िया वगैरह तो नहीं है। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स पूछेंगे कि रीडिंग से या ब्राइट लाइट से, नाइट ड्राइविंग से, इस पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर वो कहेगा कि नाइट ड्राइविंग से कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो कैटरैक्ट का के बारे में हम ज़्यादा सोच सकते हैं। फिर उसके बाद हम इससे रिलीविंग फैक्टर्स पूछेंगे कि कोई ग्लासेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं और ग्लासेस से इम्प्रूव हो रही है, और अगर ग्लासेस से इम्प्रूव हो रही है तो मोर स्पेसिफिकली वो कोई रिफ्रैक्टिव एरर ही है। और अगर नहीं इम्प्रूवमेंट हो रही, तो कोई रेटिनल डिजीज़ या ऑप्टिक न्यूरोपैथी वगैरह हो सकती है। फिर हम उनसे पूछेंगे कि कोई प्रीवियस एपिसोड वगैरह है इस डिज़ीज़ का। तो अगर रिकरेंट एपिसोड्स हो रहे हैं, जैसे उसके उनके डिक्रीज वियन के साथ यही उनके रिकरेंट एपिसोड्स हो रहे हैं, तो कोई माइग्रेन वगैरह हो सकती है, रिकरेंट यूवियाइटिस हो सकता है, या इंटरमिटेंट एंगल क्लोजर वगैरह हो सकता है। अब
एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ ये होती है डिक्रीज विजन, दूसरी हमारे पास होती है आई पेन। अब पेन की हिस्ट्री हमने काफ़ी दफ़ा पहले डिफरेंट डिफरेंट हम जो हिस्ट्रीज लेते हैं उनमें बहुत कॉमन है, हमने हिस्ट्री ली हुई है पेन की, इसमें ये ओडिपारा यही सारा हम फॉर्मेट फॉलो करेंगे। पेशेंट से इसका ऑनसेट पूछेंगे, पेन का क्या है, सडन है या ग्रेजुअल है। अगर सडन होगा तो एक्यूट ग्लोकोमा हो सकता है, किसी ट्रॉमा की वजह से सडन पेन हो सकती है। ग्रेजुअल है तो क्रॉनिक यूवीआइटिस वगैरह हो सकता है। फिर उसके बाद हम उससे ड्यूरेशन पूछेंगे, अगर कुछ घंटों से पेन हो रही है तो वही एक्यूट ग्लोकोमा वगैरह, डेज से है तो केराटाइटिस, वीक से है तो सेक्लिराइटिस वगैरह। प्रोग्रेशन पूछेंगे, फिर उसके पूछेंगे एक आंख में पेन हो रही है, दोनों में पेन हो रही है। यूनिलेटरल जो है ना वो ज़्यादा कॉमन होती है ग्लोकोमा में, केराटाइटिस में या किसी ट्रॉमा में, और बाईलेटरल जो होती है वो पेन होती है मोस्टली किसी एलर्जी में या ड्राई आई वगैरह है तो। फिर सेवेरिटी पूछेंगे, करेक्टर पूछेंगे कि शार्प पेन है, बर्निंग है, डल है, थ्रॉबिंग है, या कोई फॉरेन बॉडी सेंसेशन की वजह से आपको पेन हो रही है। बर्निंग पेन जो है वो हमारे पास होती है ड्राई आई में, शार्प होती है पेन कॉर्नियल एब्रेजन वगैरह में, डीप पेन जो होती है वो सेक्लेराइटिस वगैरह में होती है। पेन ऑन वन आई मूवमेंट ऑप्टिक न्यूराइटिस में हो सकती है। और फिर उसके बाद हम पूछेंगे इसका इससे एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, रेडनेस हो रही है, वीएन लोज, फोटोफोबिया, एग्रीवेटिंग फैक्टर पूछेंगे कि आई मूवमेंट से ज़्यादा पेन तो नहीं हो रही है, या लाइट से ज़्यादा पेन तो नहीं हो रही। रिलीविंग फैक्टर्स पूछेंगे, रेस्ट वगैरह करते हैं आप तो ठीक होती है पेन के नहीं, या आंख बंद करते हैं तो पेन को फ़र्क पड़ता है या नहीं। फिर उसके बाद प्रीवियस एपिसोड्स पूछ लेंगे। तो ये हमने सेकंड मोस्ट कॉमन जो डिजीज़ है जिससे मोस्टली पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं ओपीडी वगैरह में, वो भी पूछ ली। थर्ड हम रेड आई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसमें भी सेम यही हम फॉर्मेट फॉलो करेंगे कि पेशेंट का ऑन सडन ऑनसेट है तो कंजक्टिवाइटिस हो सकता है रेड आई में। अगर पेशेंट रेड आई के साथ प्रेजेंट किया और उसका सडन ऑनसेट है तो कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है। ग्रेजुअल ऑनसेट है तो ब्लेफराइटिस हो सकता है। पेनफुल रेड आई है तो केराटाइटिस वगैरह हो सकता है। पेनलेस रेड आई है तो कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। केराटाइटिस में पेनफुल रेड आई होती है और कंजक्टिवाइटिस में पेनलेस होती है। यूनिलेटरल है तो केराटाइटिस ग्लोकोमा वगैरह में हो सकता है। बाईलेटरल है तो वायरल या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। फिर उससे प्रोग्रेशन पूछ लेंगे, एसोसिएटेड कोई सिम्टम जैसे होगा तो कंजक्टिवाइटिस होगा, एसोसिएटेड फोटोफोबिया, केराटाइटिस होगा। अगर वीएन डिक्रीज कर रही है उससे या नहीं, ये भी साथ पूछ लेंगे। फिर उसके बाद अगर मोस्टली अगर कोई पेशेंट आ गया है वाटरिंग की कंप्लेन है पेशेंट की, तो हम उससे भी सेम यही पूछेंगे, सडन है। फिर उसके बाद कि ऑनसेट कैसा है का, करेक्टर कैसा है, एक आँख में है, दोनों में है। और उसके बाद हवा से ये ज़्यादा वर्स होती है नहीं, पेन हो रही है कि नहीं, वाटरिंग के साथ रिकरेंट एपिसोड्स हैं या नहीं। फिर उसके बाद डिस्चार्ज, अगर कोई पेशेंट कह रहा है कि उसकी आंखों से डिस्चार्ज है कोई, फिर उसे पूछेंगे कि ये नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कंप्लेंट होती है हमारे पास कि पेशेंट है कोई कह रहा है कि डिस्चार्ज है आंखों में, तो उसे पूछेंगे वाटरी है तो वो वायरल कंजक्टिवाइटिस होगा, म्यूकॉइड होगा तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होगा, थिक प्यूरुलेंट डिस्चार्ज हो है तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होगा, और अगर वो कह रहा है डिस्चार्ज है विद पेन एंड फोटोफोबिया तो वो केराटाइटिस हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास कोई पेशेंट आ गया इचिंग के साथ, तो हम इसमें भी सेम यही सारा फॉलो करेंगे कि सीजनल तो नहीं है, डस्ट या पॉलन का एक्सपोजर तो नहीं था, बाइलेटरल थी, बर्निंग इचिंग थी, लिड की इचिंग है अगर तो वो ब्लेफराइटिस होगा, और सिवियर रिकरेंट इचिंग है यंग पीपल में तो वो वर्नल करेटो कंजक्टिवाइटिस होता है। फिर उसके बाद फोटोफोबिया कुछ पेशेंट्स की कंप्लेन होती है, उसमें भी हम यही पूछेंगे, सडन ऑनसेट है उसका या ग्रेजुअल है, पेनफुल है, पेनलेस है, वीएन लॉस तो नहीं है, साथ रेड आई है, सिवियर फोटोफोबिया वगैरह पूछेंगे। फिर उसके बाद डिप्लोपिया, पेशेंट कह रहा है कि उसको डिप्लोपिया है तो हम पूछेंगे मोनोकुलर है या बाइनोकुलर है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। फिर डोसिस पूछेंगे उसमें, या डिप्लोपिया वगैरह है तो वो थर्ड नर्व पॉलिसी की वजह से होता है, मिस्थेनिया ग्रेविस उसकी डायग्नोसिस बन सकती है। अगर वो कह रहा है कि
डिप्लोपिया जो है वो हॉरिजॉन्टल है तो 6 नर्व पाल्सी हो सकती है, वर्टिकल है तो 4th नर्व पाल्सी हो सकती है। और फिर पेशेंट्स आते हैं फ्लोटर्स की कंप्लेन के साथ, उसमें भी हम यही सडन ऑनसेट या ग्रेजुअल ये पूछेंगे। विद फ्लैशेस है तो रेटिनल टेयर या रेटिनल डिटैचमेंट होती है। फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव इंक्रीज़ है तो वो विट्रस हेमरेज होगा। एक आँख में है या दोनों में है ये पूछेंगे। फिर उसके बाद फ्लैशेस ऑफ लाइट, फॉरेन बॉडी सेंसेशंस, हमने यही सारा फॉर्मेट फॉलो करके अपनी जो है प्रेजेंटिंग वो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस उसमें ये सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स पूछने हैं हमने। जितनी ज़्यादा कंप्लेन प्रेजेंटिंग कंप्लेन है ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट की एक से ज़्यादा प्रेजेंटिंग कंप्लेन है तो हमने एक से ज़्यादा वो जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं ना प्रेजेंटिंग कंप्लेन में, उनके आगे सारी डिटेल पूछनी है। उसका ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, ये सारे पॉइंट्स हम पूछेंगे। और इस तरह हमारी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस जो है ना ये कंप्लीट होगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हिस्ट्री में। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के बाद हम नेक्स्ट पूछेंगे पेशेंट से किसी भी ट्रॉमा की कोई हिस्ट्री, कि उनके कोई चोट तो नहीं लगी आंख पे या किसी चीज़ से हिट तो नहीं हुई आंख। फिर उसके बाद पास्ट ऑक्यूलर हिस्ट्री पूछ लेंगे कि इनको कोई पहले डिजीज़ तो नहीं है आएगी इससे पहले, कोई कैटरेक्ट, ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी वगैरह, ये सब चीज़ें हम पूछ लेंगे। फिर उसके बाद हम ड्रग हिस्ट्री पूछेंगे। Are you using any eye drops? Are you taking any medicines for your eye? Are you taking any medicine for other medical conditions? कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आई के लिए हम नहीं स्पेसिफिकली यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन उनका इफ़ेक्ट होता है आई पे। अब सबसे ज़्यादा जिसमें हमारे पास है स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स का इफ़ेक्ट हो रहा होता है। वो स्टीरॉइड्स होते हैं हमारे पास, ये कैटारैक्ट या ग्लोकोमा वगैरह कॉज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इथेम्ब्यूटोल जो है ये ऑप्टिक न्यूरोपैथी कॉज करता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन जो है ये हमारे पास रेटिनल टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती हैं। फिर उसके बाद हम एलर्जिक हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे कि डू यू हैव एनी एलर्जी टू मेडिसिन्स, हैव यू एवर डेवलप्ड एन एलर्जी टू आई ड्रॉप, आर यू एलर्जिक टू डस्ट, पॉलन, एनी कॉस्मेटिक्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज। अब डस्ट या पोलन की एलर्जी होगी तो वो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस की तरफ हमें क्लू मिलेगा। कॉस्मेटिक एलर्जी जो होगी वो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कॉज कर सकती है अराउंड आईलिड्स। और फिर उसके बाद हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे कि उनको डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, कोई थायराइड डिजीज़ तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ वगैरह, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, स्ट्रोक या माइग्रेन। अब ये जो है डायबिटीज़ जो है, अगर अब ये पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे तो इससे भी हमें काफ़ी डायग्नोसिस के लिए क्लू मिल जाएगा। जैसे अब डायबिटीज़ के पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, कैटरेक्ट हो सकता है, कोई क्रेनियल नर्व पाल्सी हो सकती है, हाइपरटेंशन है अगर किसी को तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकती है, रेटिनल वेस्कुलर ऑक्लूजन हो सकती है। अगर कोई पेशेंट है जिसको पहले थायराइड का कोई प्रॉब्लम रहा हो तो उसको थायराइड आई डिज़ीज़ हो सकती है विद प्रोप्टोसिस एंड डिप्लोपिया। टीबी के पेशेंट को यूवीआइटिस हो सकता है। फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हम पूछ लेंगे पेशेंट से। स्ट्रोक है उसकी हिस्ट्री अगर पेशेंट की तो वो वीवीएल फील्ड डिफेक्ट्स हो सकते हैं उसमें और डिप्लोपिया हो सकता है। फिर उसके बाद हम फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे। Does anyone in your family have glaucoma? Any family history of cataract at a young age? Does anyone have color blindness? Ask any family history of retinal disease or severe vision loss, etc. etc. Does glaucoma, कलर ब्लाइंडनेस, रेटिनाइटिस वगैरह ये मोस्टली डिजीज़ फैमिलीज़ में रन कर रही होती हैं। फिर उसके बाद पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री पूछ लेंगे। डू यू स्मोक, डू यू ड्रिंक अल्कोहल, व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन। जब ये हम पहले भी चीज़ें पूछ चुके हैं वैसे। डू यू ड्राइव, इफ़ यू यूज़ कॉन्टैक्ट लेंसेज, हाउ डू यू क्लीन एंड स्टोर देम। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, अक्सर टीचर्स पूछ रहे होते हैं कि आपने पेशेंट से पूछा था कि वो कॉन्टैक्ट लेंसेज को क्लीन और स्टोर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर इनके हाइजीन को मेंटेन नहीं किया हुआ पेशेंट ने तो माइक्रोबियल केराटाइटिस हो सकता है। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हो सकते हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कोई फॉरेन बॉडी केमिकल इंजरीज वगैरह। फिर उसके बाद हम सिस्टेमिक रिव्यू लेंगे पेशेंट से कि उनको कोई
हेडेक, नमनेस या वीकनेस। सबसे पहले हम इनको सिस्टेमिकली देख लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल पूछ लेंगे पहले कि कोई हेडेक, नमनेस, डिजीनेस वगैरह तो नहीं है। अगर ऐसी कोई होगी तो फिर स्ट्रोक या इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स हो सकते हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो सकता है। फिर उसके बाद हम ईएनटी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेंगे, कोई ईयर पेन, नेज़ल डिस्चार्ज, साइनस इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। फिर स्किन से रिलेटेड पूछ लेंगे, कोई स्किन रैशेज़ या ब्लिस्टर्स वगैरह तो नहीं है। फिर क्योंकि ये जो हर्पीज़ जोस्टर्स वगैरह होते हैं ये आई को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, और जो ऑटो इम्यून स्किन डिजीज़ होती हैं उनकी भी ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस होती हैं। फिर मस्कुलर स्केलेटल के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेंगे, कोई जॉइंट पेन या स्टिफनेस तो नहीं है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स पूछ लेंगे कि कोई फीवर, वेट लॉस या नाइट स्वेट्स तो नहीं है। एंडोक्राइन रिलेटेड क्वेश्चंस के कोई थायराइड डिजीज़, वेट चेंज या हीट इंटॉलरेंस वगैरह तो नहीं है। बस ये चीज़ें हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बस लास्ट पे आपने देख लेना है कि आपने सारी चीज़ें कम्प्लीटली पूछ ली पेशेंट ने नहीं। आपने पेशेंट से सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, फिर उसके बाद पेशेंट का बायोडाटा, फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेन, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, मेजर यही पोर्शन होता है। इसमें हमने पेशेंट से पूछना है कि वो अब इस वक्त क्यों आया है हमारे पास, और सारी ड्यूरेशन हमने लाजमी लिखनी है और इसको एक ऑर्डर में हमने लिखना होता है। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में ये सारे पॉइंट्स आपने फॉलो करने हैं, जो भी डिजीज़ है आपने उसके लिए ये वाले पॉइंट्स देखने हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। वैसे डायग्नोसिस बनाना अभी इस लेवल पे तो नहीं हमसे पूछते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी हैं, साथ साथ आप नोट कर लेना, हेल्प मिलेगी इससे भी काफ़ी। फिर उसके बाद एनी ट्रॉमा हिस्ट्री, पास्ट ऑक्यूलर हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, एलर्जी हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री,